Hello students, a precious good morning to all. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Surendra Singh Children Academy. In last lecture, we discussed about silent features of modern periodic table. Okay, today we are going to start a new topic, long form periodic table. Long form periodic table. Okay, long form periodic table. Long form periodic table is also known as Bohr's periodic table. Okay, तो long form periodic table is also known as Bohr's periodic table. Why it is called, why long form periodic table is called Bohr's periodic table? Because Bohr's stabilized a close relationship between electronic configuration and physical and chemical properties of an element. Why? तो आपको आंसर मिल गया कि why long form periodic table is also known as Bohr's periodic table, because Bohr's stabilized a close relationship between electronic configuration and physical and chemical properties of an elements. Okay, Bohr's proposed that elements having similar electronic configuration. Okay, मैंने क्या कहा कि Bohr's proposed that elements having similar electronic configuration, okay, shows या कह सकते हैं कि Bohr's proposed that elements having similar electronic configuration in their valence shell. ओके, मैंने क्या बताया कि Bohr's proposed that elements having similar electronic configuration in their valence shell shows almost similar properties. Okay, that's why a regular change in electronic configuration in outermost cell is responsible for a regular change in their properties. ओके, तो समझ में आ गया होगा क्या कि जो एलिमेंट्स हैं यदि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक रेगुलर चेंज आ रहा है, एक नियमित चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी रेगुलरली क्या होती हैं, चेंज होती हैं. ओके, तो राग वर्नर साइंटिस्ट हैं, राग वर्नर एंड बरी arranged elements on the basis of Bohr's electronic configuration and prepared a long form periodic table. Okay, this is long form periodic table. ये कैसा periodic table है हमारा? long form periodic table है. तो इसको बनाया किसने मेहनत की बनाने में? 3 साइंटिस्ट थे, राग वर्नर एंड बरी, है ना. तो दीज साइंटिस्ट, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको बनाने में क्या किया, पूरी अपनी मदद की. किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये हमारा पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हुआ, है ना.
लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को हम क्या बोलते हैं, बोर्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्स स्टेबलाइज्ड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, और क्या कहेंगे, दैट्स व्हाई अ रेगुलर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in outermost cell is responsible for a regular change in properties of elements। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसके लिए, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के लिए। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ओके, तो कहीं क्या कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू horizontal rows and vertical column. Horizontal rows is known as period and vertical column is known as groups. Okay, so there are seven horizontal rows है ना, and 18 vertical columns and 18 वर्टिकल कॉलम्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। ओके, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। क्या कहेंगे इसको हम, ग्रुप्स। ओके, तो देयर आर 7 पीरियड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज रिप्रेजेंटेड एज 1 2 3 4 5 6 and 7. okay, and vertical columns represented as from 1 to 18। कहाँ से कहाँ तक, 1 to 18 तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ऐसे देखिए, हॉरिजॉन्टल रोज को हम ऐसे देखते हैं, देखिए ऐसे यहाँ तक, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल रोज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and 7 horizontal rows and 18 vertical column, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, है ना। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18th ग्रुप हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। ओके, अब जो 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह ऐसे करते हैं, देखिए फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ए मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ए का मतलब सेकेंड, है ना। एल्केलाई मेटल्स लाइक एज द हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एंड सेकेंड ए मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ओके, आफ्टर दैट कौन सा हमारा, थर्ड बी एंड फोर्थ बी, फिर क्या हमारा फिफ्थ बी, आफ्टर दैट सिक्स्थ बी, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सेवंथ बी, और उसके बाद हमारा क्या है, एट्थ, और फिर इसमें क्या है हमारा, एट्थ के बाद फर्स्ट बी, आफ्टर दैट सेकेंड बी। ओके, सेकेंड बी, और उसके बाद फिर क्या है हमारा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, उसके बाद है थर्ड ए, फिर हमारा है फोर्थ ए, और फिर है हमारा फिफ्थ ए, और फिर है सिक्स्थ ए, और उसके बाद फिर क्या है, सेवंथ ए। ठीक है, और सेवंथ ए के बाद फिर हमारा क्या है, ज़ीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारा, 17th ए के बाद फिर क्या है हमारा, ज़ीरो ग्रुप मतलब 18th ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC, पहले इनका नाम ऐसे ही रखा गया था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और एट्थ।
फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड जीरो ग्रुप. बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC it is modified like as the first a first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, एट्थ ग्रुप में कौन कौन सा है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और ये 11th, और ये हमारा 12th, और ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड जीरो ग्रुप क्या है हमारा, 18th ग्रुप. ओके, तो ये है हमारा क्या, ग्रुप्स है. ठीक है, तो इस समय हम इसको फर्स्ट टू 18 तक ही जानते हैं, और जानने के लिए इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये IUPAC के रिकमेंडेशन पर हुआ है फर्स्ट टू 18. उसके पहले क्या नाम था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, सो ऑन. ओके, तो चलिए हम इस पीरियड टेबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. इसको 4 ब्लॉक में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है. ओके, कौन कौन सा ब्लॉक है हमारा है इसमें S ब्लॉक. ओके, और फिर कौन सा है, P ब्लॉक. ओके, आफ्टर दैट D ब्लॉक, और आफ्टर दैट उसके बाद क्या हमारा F ब्लॉक. ओके, ये किसके बेस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो यस ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, तो यस ब्लॉक एलिमेंट्स है 2 ग्रुप, कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकेंड, लाइक एज द फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, है ना. These are S block elements like as the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, and second group beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Okay, so these elements belong from S block, है ना. Why these elements is called S block elements? Okay, so it is based on the electronic configuration like as the hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1s1. It means कि इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन S सबसेल या S ऑर्बिटल. ठीक है, तो इट मीन्स हाइड्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम S block. Another elements like as the sodium atomic number 11, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इंटर इन S सबसेल, S subcell. It means these elements belong from S block. So all elements of S block last electron enter in S subcell. So we can say that कि these elements belong from S block. Okay, after that we will talk about P block elements. Okay, तो from 13 to 18th group, 13 to 18th group, 13 to 18th group मतलब क्या, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड जीरो ग्रुप. ओके, like as the boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine and helium family belongs from P block elements. Okay, why it is called P block elements? On the electronic configuration, if we do electronic configuration of these elements, so last electron enter in P subcell. So we can say that, we can say that these elements belong from P block. Okay, तो these configuration या SPDF, ये जो configuration है या ये जो ब्लॉक डिवाइड किया गया है वह किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लें, चलिए बोरान एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1. ओके, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन P सबसेल. सो बोरान बिलोंग फ्रॉम
P block. दूसरा एलिमेंट ले लाइक एज द फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p, 2 to 4 6 10 2 12 and 3 15. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन p subshell. p subshell, so we can say phosphorus belong from p block elements. 2 and 3p3, so we can say phosphorus belong from p block elements. Why? Because last electron enter in p subshell, है ना. तो so these elements like as the 13 14 15 16 17 and 18th group of elements, yeah, these elements belong from p block. Why? Because last electron enter in p subshell, so we can say कि these elements belongs from p block. Okay, after that उसके बाद हम क्या बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना. इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, देखिए फ्रॉम थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी एंड एट्थ. देखिए एट्थ ग्रुप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एट्थ ग्रुप था उसमें हमने देखा था क्या कि 3 एलिमेंट्स एक साथ 3 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था सेम ग्रुप में. 3 एलिमेंट्स को एक साथ प्लेस किया गया था किसमें, एट्थ ग्रुप में. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, क्योंकि हम 3 एलिमेंट को एक साथ एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया कि इसमें पहले किसको किसको रखा जाता था एक ग्रुप में, आयरन कोबाल्ट निकिल. लेकिन इसमें देखिए आयरन कोबाल्ट निकिल किस में प्रेजेंट है, 8 9 10th में, है ना. और क्या रखा जाता था, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम. इसमें देखिए अलग अलग है, रुथेनियम रोडियम पैलेडियम. और किसको रखा जाता था, ऑस्मियम इरेडियम प्लेटिनम. तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग है, ऑस्मियम इरेडियम प्लेटिनम. तो 8th ग्रुप डिवाइडेड इनटू 8 9 10 में डिवाइड कर दिया गया. अब ये अलग अलग हो गए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, अब सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है. अब हम कह सकते हैं कि अब ये लिमिटेशन नहीं रह गया. क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया और एलिमेंट को उसी ग्रुप में प्लेस किया गया जिसमें उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, है ना. तो फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या फ्रॉम 3 to 12 एलिमेंट्स या फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट्स are called D block elements. Are called D block elements are transition elements. इसको हम और क्या बोलते हैं, transition elements बोलते हैं. D block elements is also known as transition elements. Why? Because these elements shows variable valency. These elements shows variable valency like as the copper. Copper also shows 2 type of valency like as the 1 and 2. Okay, and iron also shows 2 type of valency like as the 2 and 3. Okay, and gold also shows 2 type of valency like as the 1 as well as 3, है ना. तो these elements shows variable valency, so we can say these are the transition elements or transition metal, है ना. These elements belong from D block elements. इसको हम क्या बोलते हैं, D block elements बोलते हैं. Why these elements are called D block elements? इनको हम D block elements क्यों कहेंगे, है ना. तो एक एलिमेंट्स ले लें जैसे हमारा है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d1. ओके, तो एटॉमिक नंबर 21 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 and 21. ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन वी सबसेल, सो वी कैन से दैट कि स्कैंडियम बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना. अनदर एलिमेंट जिस सपोज दैट आयरन है, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26, है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d6. ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी सबसेल, तो आयरन बिलोंग फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स.
ओके, तो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ केटायंस, एंड फॉर्म अ केटायंस। और क्या बनाते हैं ये? केटायंस बनाते हैं, कभी ये हमारे एनायंस नहीं बनाते हैं, है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और फर्स्ट ग्रुप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्केलाई मेटल्स, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज एल्केलाई मेटल्स एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज एल्केलाइन अर्थ मेटल। ओके, एंड थर्ड टू 12 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ये हमारे क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए आफ्टर दैट हमारा कौन सा बचता है? एफ ब्लॉक। कौन सा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो ये भी किसके बेस पर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, या ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं कि एट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल, है ना। तो हमारा यहाँ तक क्या है? यहाँ तक ये हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है, और ये हमारे क्या हैं? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, है ना, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ओके, तो ये हमारा लैंथेनाइड सीरीज है और ये हमारा एक्टिनाइड सीरीज है ना। तो टू सीरीज प्रेजेंट बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यह ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है? 58 to 71 तक। कौन कौन सा? सीरियम, प्रेसियोडाइनमियम, नियोडाइनमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडालोनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इरेबियम, थोलियम, वाइट्रीबियम एंड ल्यूटिटियम। ओके, एंड एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से है? थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेंसियम, क्यूमियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेंसियम, है ना। तो दीज आर यह ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एंड सेकेंड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। व्हाई इट इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज? बिकॉज दीज एलिमेंट्स कम्स आफ्टर लैंथेनम। किसके बाद आते हैं ये? लैंथेनम। और लैंथेनम कहाँ पे है? यहाँ पे, मतलब किस पीरियड में? सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में ये जो 14 एलिमेंट है, सीरियम टू ल्यूटिटियम, 14 एलिमेंट्स प्लेस्ड इन थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड। लेकिन यहाँ पे ना रख करके इसको कहाँ पे रखा गया है? मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज को, इसको हम एक्टिनाइड सीरीज क्यों कहते हैं? कि बिकॉज थोरियम टू लोरेंसियम क्या है? ये एक्टिनाइड्स हैं, और दीज एलिमेंट कम्स आफ्टर एक्टिनियम। और एक्टिनियम किस में हमारा? एक्टिनियम हमारा है सेवंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप में। देखिए यहीं पर 89 to 103, 57 to 71। इसका मतलब कि इतने एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे हैं और इतने एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं। ये जो सीरीज़ है 58 to 71 वो किस में आता है? सिक्स्थ पीरियड में। इट मीन्स दीज एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड एंड दीज एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम सेवंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। ओके, और दीज एलिमेंट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज बट प्लेस्ड बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। बहुत दुर्लभ से ये एलिमेंट्स हमको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। सो इट इज कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, है ना। और आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं लाइक एज नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेंसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लोरेंसियम, है ना। ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये किसके बाद हैं? आफ्टर यूरेनियम। आफ्टर यूरेनियम कहेंगे सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कम आफ्टर यूरेनियम इज नोन एज
synthetic elements, are artificial element, are post-uranic element, are transuranic elements. ओके तो ये हमारा है यस ब्लॉक और ये हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड यस ब्लॉक एंड राइट साइड पी ब्लॉक, और बीच में बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, और बिलो मेन पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। कहीं क्या कि फर्स्ट पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड, व्हाई? बिकॉज ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में केवल हमारे 2 ही एलिमेंट्स हैं है ना, और एवरी पीरियड्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ, या कह सकते हैं कि एवरी पीरियड्स करेस्पॉन्डिंग टू द न्यू क्वांटम नंबर या न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फॉर फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड के लिए, फॉर फर्स्ट पीरियड क्वांटम नंबर इज n इक्वल टू 1। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, और एक एलिमेंट और कौन सा? हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2। तो व्हाट इज द 1 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। तो n इक्वल टू 1, व्हाट इज द n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फॉर द फर्स्ट पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n इक्वल टू 1। फॉर सेकेंड पीरियड के लिए बात करें हम, तो सेकेंड पीरियड कौन सा है? लिथियम। सेकेंड पीरियड में हमारे कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और कौन से हमारे? नियान। ओके तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो 1s2, 2s1 है ना। तो 1s2, 2 क्या है? व्हाट इज द 2? 2s1, 2 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मीन्स सेकेंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 2। व्हाट इज द n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s1। अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2। अब इसके आगे जाएंगे बोरान के लिए तो 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन के लिए जाएंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। ओके फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन में जाएंगे, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ओके फ्लोरीन में जाएंगे हम, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5। ओके और फिर नियान में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो कहाँ से स्टार्ट? देखिए यहाँ पे 2 क्या चल रहा है हमारा? 2 है ना। तो फॉर सेकेंड पीरियड n इक्वल टू 3, फॉर थर्ड पीरियड n इक्वल टू 3, फॉर फोर्थ पीरियड n इक्वल टू 4 एंड फॉर फिफ्थ पीरियड n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन है ना। तो एवरी पीरियड्स फ्रॉम फर्स्ट टू 7 है फॉर डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर फर्स्ट पीरियड n इक्वल टू 2, सेकेंड n इक्वल टू 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4 एंड 5, फिफ्थ 5 एंड 6 एंड 7 है ना। तो एवरी पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके देखिए दिस पीरियोडिक टेबल इज इजी टू लर्न, यह पीरियोडिक टेबल हमें लर्न करने में आसानी है। ओके पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हम एलिमेंट्स का पोजीशन इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस पीरियोडिक टेबल अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इन प्रॉपर्टीज। ओके तो इस पीरियोडिक टेबल को हम इजीली क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। और हम भी ये भी बता देंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज द अंडरस्टूड, या कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड on the basis of electronic configuration we can easily find out the position of elements. Okay
तो हम एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है तो हम किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस टेबल है correlationship between electronic configuration and position of elements। तो एलिमेंट के पोजीशन और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक क्या है, कोरिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्या है कि when atomic number increases property of elements orderly change, है ना। अगर एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगा, ऑर्डरली चेंज होगा। ठीक है, कैसे, जैसे हम चलेंगे सेकेंड पीरियड में, जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज सो प्रॉपर्टी ऑलवेज ऑर्डरली चेंज, तो उसकी प्रॉपर्टी भी ऑर्डरली क्या होगी, चेंज होगी। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करेगी, चेंज करेगी। जैसे उसकी जो एटॉमिक रेडियाई होगी, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे एटॉमिक रेडियाई जो होगी वह डिक्रीज करेगी, है ना। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम मतलब किसमें, ग्रुप में आएंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब किसमें, पीरियड में जाएंगे। टॉप टू बॉटम जैसे आएंगे तब भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। कैसे, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रांसियम 87। तो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब उनकी प्रॉपर्टी में ऑर्डरली क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ऑर्डरली क्या आएगा, चेंजेस आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अब हम कर रहे हैं हाइड्रोजन है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका 1s1, या ऐसे कर लेते हैं 1, इसका करेंगे तो 2-1, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2-8-1, है ना। अब इसका करेंगे तो 2-8-8-1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2-8-18-8-1 आ जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो 2-8-18-18-8-1, और इसका करेंगे तो 2-8-18-32-18-8-1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए these elements contain 1 electrons in their valence shell, in their valence shell। it means इसका मतलब क्या हुआ कि these elements contain same type of properties but properties orderly changes, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ऑर्डरली क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए K सेल है, यहाँ पे KL है, यहाँ पे KLM है, और यहाँ पे NOP एंड Q। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वैसे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर बैलेंस सेल रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनकी साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स वी कैन से ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स कि प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दिस कहेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल या दिस पीरियड टेबल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है ना। और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही क्या करती है, डिपेंड करती है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज मेटल एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज non-metals, and D block elements is known as transition elements, and F block elements is known as inner transition elements. Okay, in this periodic table 18th group or 0 group elements like as the helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, these are noble gases or inert elements. Why? Because
बैलेंस सेल ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, या कह सकते हैं कि इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स आर नोबल गैसेज। दीज एलिमेंट मोस्टली दीज एलिमेंट नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, या ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लाइक एज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and acetylene, these are most electronegative elements, है ना। This group is also known as halogens, okay, या इसको हम halogen elements भी बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, halogens, okay. These are most electronegative elements. These elements have tendency only gain electron, not lose electron. It means these elements gain electron and form n ions, ये हमेशा n ions का ही फॉर्मेशन करते हैं। So we can say that these are most electronegative elements, okay. And first group of elements like as the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, these are most electropositive elements. Why? Because these elements tendency only lose electron and form cations. And 17th group of elements is most electronegative element. Most electronegative element is a fluorine, and most electropositive element is cesium, and francium is a radioactive elements, है ना। तो most electropositive कौन है, cesium है। and in whole periodic table, पूरे periodic table में सबसे most electropositive element कौन है, cesium है। why? because cesium easily loses electron from their valence shell and form cations, okay। और इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हमारा सीजियम, है ना। और सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आल्सो प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल लाइक एज द फ्रेंसियम, रेडियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, है ना। तो दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच इमिट्स अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, okay. And 16th group elements is also electronegative elements. Why? Because tendency to gain electron, क्योंकि इनकी भी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर, ये सभी हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और दीज ग्रुप इज आल्सो नोन, या दीज एलिमेंट्स इज आल्सो नोन एज, या दीज एलिमेंट्स नेम्ड एज चैल्कोजेंस। दीज आर हैलोजेंस और दीज आर चैल्कोजेंस, है ना, हैलोजेंस एंड chalcogens. Why it is called chalcogens? Because these elements forms ores, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। एंड सम सेमी मेटल्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक लाइक एज कौन कौन से हमारे, जैसे हमारा एल्युमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम और कौन सा है, टीन, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो दीज आर सेमी मेटल्स, दीज आर सेमी मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी मेटल? बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंटेन टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक एज द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ओके। तो ये क्या है, हमारे सेमी मेटल्स हैं, ओके। तो ये है हमारा क्या पूरा किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इसे अगर हमको लर्न करना हो तो कैसे इसको हम याद करेंगे, है ना। तो जैसे इसमें है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन से हलीना, हलीना की रब से फरियाद, देखिए याद हो गया, हलीना रब से, या हलीना की रब से फरियाद, है ना, याद हो गया। अब देखिए सेकेंड ग्रुप है जो एस ब्लॉक का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इसमें क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, है ना। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो है वह स्कूटर और कार मांग रहा है, लेकिन बाप राजी नहीं होता था, लेकिन राजी हो गया। कैसे, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, है ना। इसको कैसे याद, एक लड़की है जिसका नाम है हलीना, ठीक है, हलीना की रब से फरियाद। हलीना ने क्या की, रब से फरियाद की,
किसके लिए? कि वह अपने लाइफ में कुछ करे और आगे बढ़े। ठीक है, तो यस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे हम याद करेंगे? इसके लिए जैसे क्या है, 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप मार्केट में जाते हो तो सब्जी किस में लेके आते हो? थैले में। तो क्या क्या लेकर के आओगे आप लोग? बैगन, आलू, गाजर, और किस में लेके आएंगे? इन थैला, इन थैला। ठीक है, अब ये कौन सी है? अब जैसे क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जैसे मान लीजिए आप 4-5 दिन से एब्सेंट थे और रिजल्ट आ गया, आपने पेपर दिया और 4-5 दिन से आप लोग एब्सेंट थे, तो जब आए तो पूछा कि कौन टॉप किया, है ना, तो किसी ने क्या कहा कि गीता, स्नेहा और प्रभा ने टॉप किया, है ना। तो आपने क्या कहा कि कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तभी आप पूछते हैं क्या कि कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है, अब फिर देखिए 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है ना। तो 15th ग्रुप में जैसे कोई बच्चा है लीकर पीता है, लेकिन वह बड़ों के बीच में बैठ करके लीकर पीने का प्रयास करता है, तो एक सज्जन उसको सलाह देते हैं क्या कि न पी ऐसे, न पी ऐसे सबके बीच, न पी ऐसे सबके बीच। ओके, 16th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जैसे क्या है कि कोई बच्चा है जो एग्ज़ाम दे रहा है, कई लोग लाइंस में एक रो में बैठ करके क्या करते हैं? एग्ज़ाम देते हैं। तो एक बच्चा है जो नकल टीप रहा है, तो उसको डर ये लग रहा है कि हो सकता है टीचर कहीं देख न ले, तो क्या कहता है कि ओ मतलब उसको बुला रहा है, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, जरा स्टाइल से टीपो, है ना। ठीक है, 17th ग्रुप में, है ना, तो एक आंटी थी, थोड़ा झगड़ा हो गया और वो घर के अंदर चली गई। ठीक है, घर के अंदर चली गई और वो 4-5 दिन के बाद घर से बाहर निकली, है ना, तो घर से बाहर निकली, है ना। तो एक लोगों ने पूछा कि आंटी जी बाहर नहीं आ रही हैं, तो उसने क्या कहा कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अब 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें क्या है कि कहता है कि एक दादी है, ठीक है, सॉरी, एक नानी है जिनकी तबीयत बहुत क्या है? खराब है ना। तो एक बच्चा उनको सलाह देता है क्या कि हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। नानी, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, और नहीं आराम करेगी तो क्या हो जाएगा? मर जाओगी, है ना। इसलिए क्या कहता है कि हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। ठीक है, तो चलिए एक ही चीज़ जानिए कि दिस पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी में भी क्या होगा? ऑर्डरली चेंज आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 121, 281, 2881, 281881, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? ऑर्डरली चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डरली चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? ऑर्डरली चेंज करेगी, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, और सारे क्वेश्चंस बोर्ड में या कंपटीशन में जो भी पीरियोडिक टेबल से आएंगे वह इसी से ही आएंगे। तो इसमें क्या है? हमारा एल्कलाई मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स बोलते हैं। जो नोबल गैसेज है आर इनर्ट एलिमेंट्स हैं, जिसको हम स्टेबल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है? कंप्लीट होता है। और वह एलिमेंट्स कौन है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान हैं, है ना। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के बाहर रखे गए हैं, वो कौन से हैं? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं। ओके, और हमारे जो बीच में एलिमेंट रखे गए हैं ये हमारे क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट
एलिमेंट्स हैं, इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सॉलिड फॉर्म में हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं ऐसे जो हमारे लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे लिक्विड फॉर्म्स में भी होते हैं, और बहुत से एलिमेंट हैं जो गैसियस हैं और बहुत से ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पूरा पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में आज हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। इसको ध्यान से पढ़िए और आगे जो है अगर ये पीरियोडिक टेबल आपका पूरा प्रिपेयर रहता है तो निश्चित तौर पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।